Hello everyone, today we are going to start with Physics Chapter 1, Electricity. So what is electricity? First, to understand electricity, you must understand the concept of electric charge. In our day-to-day life, we use many applications of electricity, but okay, that's current electricity. But how did all start? Where did it come from? Is it a matter? Can we see it? Can we feel it? Uh, To understand all those concepts, we must start from the concept of electric charge. Now, let me just give you my perception on it before we read from the textbook. See, everything around us is made up of matter. What is matter? Matter is what we can see, we can feel, we can perceive by our senses. That is matter. Matter is made up of tiny particles. Tiny particles. You know what are these tiny particles? They are known as atoms and molecules, of course. Okay. These atoms are further made up of more tiny particles. Okay. So those tiny particles are of three types: protons, electrons, and neutrons. Now you must have studied about these three tiny particles: protons, electrons, and neutrons. We are concerned with these two tiny particles of which matter is made up of, that is protons and electrons. Why are we concerned with these two tiny particles? Because they are the primary responsible things for the production of electricity. Why? Because they have certain charge on them. So these particles themselves are known as charges. So proton is a positively charged particle, electron is a negatively charged particle, and they are collectively called as charges. So what do charges do? What do protons and electrons do? They basically exert force on each other. If a proton and electron was to be near together, they would attract each other. Right? Proton and electron would attract each other. But what if a proton and another proton were brought together? They would repel each other. They would try to go away from each other. Similarly, an electron and another electron, what would they do? They would try to go away from each other. So we know one thing: opposite charges attract each other, and like charges repel each other. So why there is this force? This force is known as electrostatic force. Electrostatic force of attraction or electrostatic force of repulsion. So the question why there is a force, why there is a charge, what is the need of charge, these are unanswerable questions. They are there. That's how they exist. This is their property. So these are some universal facts which we have known about matter. Right? So all of this starts from the study of matter. Matter made of tiny particles. Matter is what? All the substances around us made up of tiny particles, which are basically atoms and molecules. What are atoms made up of? When this question was answered, and when you learned it in class 9th, when J.J. Thomson and Rutherford and all the other scientists did experiments and found the existence of protons, neutrons, and electrons, then it was discovered that atoms are not the smallest particles. There is something beyond atom, something inside atom, something smaller than atom, which is responsible for many of the phenomena, and such a phenomena is known as one of the such phenomena is called electricity. So electricity is basically of two types. Let me uh, elaborate this further. Electricity is basically of two types. One is static electricity and another is current electricity. So static electricity is a subject
of electricity in which you study about charges at rest. You study about charges at rest. You must have studied in class 8, gold leaf electroscope, right? Have you studied about that? If you have, then you know what is static electricity. You know, when you brush your hair with comb, and when you bring that comb near the pieces of paper, it attracts the pieces of paper, right? So why does this happen? If you ebonite rod and wool, glass rod and silk, when you rub them, they attract each other. Why? Because on rubbing, these charges gets distributed, redistributed, transferred from one body to another, and that's why the body becomes unequally charged. Unequally charged means in one of the body, positive charges are more and negative charges are less. In second body, negative charges are more and positive charges are less. And that's why they show the effect of static electricity. The charges are there but unequal in both the bodies. That's why both the bodies attract or repel each other. So that is the phenomena of static electricity. You're going to study static electricity in detail in class 12th. Right? But in class 10th, you are going to study basics of current electricity. So what is current electricity? Charges in motion, or you can say flowing charges, charges which are flowing, right? Flowing charges are known as current electricity. So what happens here is, in current electricity, mostly you're going to learn about flowing charges with the help of some substances which are known as conductors. So charges flow with the help of conductors in current electricity. So in current electricity, we are mostly going to be associated with conductors. And in static electricity, we are going to, so we always, when we study about static electricity, the charges are at rest. And we are not going to study static electricity here, but still I would tell you that static electricity is not associated with conductors. Because in conductors, there are so many free charges, free electrons, that the charges cannot be at rest. They always start flowing. But in static electricity, the charges are at rest. So basically, we are talking about insulators. Insulators are the substances which do not allow the charges to flow through them. Conductors are the substances which allow the charges to flow through them. Right? So these are two principal branches of electricity: static electricity and current electricity. Right? So basically, the whole chapter is about charges, that is charged particle, that is protons and electrons. That is the basic fundamental particle present in any matter. Right? Insulators have also got charged particles, and conductor has also got charged particle. But in both the substances, insulators and conductors, the behavior of charged particle is different. In conductors, the charged particle, they prefer to flow. Mostly the electrons. Protons, they do not flow. Why protons, they do not flow? Because you see an atom. Okay. So where are the protons located? These are all the orbits. And where are all the protons located? Right in the center. That is in the nucleus. Can they go out of the nucleus? No. But electrons are free to move and revolve around the nucleus, right? So electrons can flow, protons cannot flow. So that is why the current electricity is related with flowing charges, and that too specifically electrons, because only electrons flow. So we will focus on current electricity. Our focus will not be on static electricity. Please understand this. Our focus will be on this chapter. We will be focusing on current electricity. So in class 12th, you are going to study about static electricity first, understand everything about it, and then go to current electricity, understand everything about it, right? So
That is going to come but 2 years later. Right now let's focus on current electricity. Let's see what the chapter has to offer us. We are going to do part by part because it's a huge chapter, a lot of concept to be learned. Physics is not just theory, a lot of concepts, numericals, derivations, units, uh, formulae, so many things associated with physics. So the first thing which we learned about current electricity is electric charges. There are two kinds, positive and negative, and that is due to protons and electrons. Neutrons are neutral. Neutron do not have any charge. All right, let's go. So here, as I explained you earlier, if you rub a silk cloth with glass rod, the glass rod acquires positive charges and silk cloth becomes negatively charged, and they both attract each other. So what is the reason behind this? The reason is the presence of charged particles. And rubbing, what happens? The charged particles were always there. Glass already had charged particles. Silk cloth already had charged particles, but they did not attract each other before rubbing. But when we rubbed them, the charges redistributed themselves. Some of the electrons jumped from glass rod to silk cloth. So silk cloth became negatively charged and glass rod became positively charged. And then they started attracting each other. But the charges did not flow because these two are insulators basically. That's why this branch of electricity, this phenomena of electricity, is associated with static electricity. Let's go ahead. Okay, properties of electric charge. Now, not all the properties listed over here, but many of the properties which are important are here, and for your reference, it is good to read. Electric charges are of two types. By convention or assumption, one is positive and the other is negative. Unlike charges attract each other and like charges repel each other. We have already discussed about the types of charges and their nature. In an isolated system, net electric charge can neither be created nor can be destroyed. This means that electric charge is conserved in an isolated system. So what is an isolated system? Isolated system is where no external factor can affect the system. In such a system, electric charges can neither be created nor be destroyed. If you ask me, this particular property has no relevance in class 10. This property has to be studied in detail in class 12th. For now, please understand, charges can neither be created and nor be destroyed. Just understand that. Isolated system, we don't have to do anything with that right now. Fourth property, charges are quantized, that is in a multiple of E. Quantized means ये charges कभी ऐसे आधे अधूरे नहीं होते. ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाफ इलेक्ट्रॉन दे दो भैया, हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ प्रोटॉन, ऐसा हो ही नहीं सकता. हाफ प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता, हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता. ये हमेशा इंटीजर नंबर में होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, इनकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, एंड दैट टू इज इन द मल्टीपल ऑफ ई. एंड व्हाट इज ई? ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो या तो इलेक्ट्रॉन होंगे 2e, 3e, 4e, राइट, बट कभी भी इलेक्ट्रॉन 4.5e नहीं हो सकते. मल्टीपल ऑफ ई में 4.5e नहीं आएगा. ठीक है. एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल, नेट चार्ज इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. हमने अभी देखा था सिल्क रॉड और ग्लास में. नेट चार्ज कब होता है ग्लास रॉड पे और सिल्क पे? रब करने के बाद. रब करने के बाद क्या होता है? ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन से वो जंप करके सिल्क में चले जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर रिमूव हो जाते हैं, इसलिए नेट चार्ज आ जाता है. एंड दैट नेट चार्ज, उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE. Q इज इक्वल टू NE. ये तुम्हारे चैप्टर का सबसे पहला 10th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का फॉर्मूला है, याद रख लेना. जहां पे n क्या है अभी मैंने बताया था. I just told you n is an integer. So Q, that is total charge or net charge on any body, is integer multiple of E. 2e, 3e, 4e, 5e, never 4.5e, never 3.2e, never in fraction, never in decimal. N always will be an integer. अच्छा, ये E क्या है? E is magnitude of charge on one electron. कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो अभी के अभी. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to
-19 C। व्हाट इज दिस C? ये C यूनिट है जिसमें चार्ज को मेजर किया जाता है। तुम बोलोगे सर चार्ज तो पार्टिकल है, पार्टिकल को ऐसे मेजर कैसे करते हैं? हाँ, पार्टिकल को तो नंबर से ही मेजर करेंगे, लेकिन वो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। उस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो वो चार्ज को मेजर करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट्स ने एक यूनिट बना दिया है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है। हम ये नहीं बोल सकते किस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि किस बॉडी पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये जो C है, इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट यूनिट कूलम, COULOMB, कूलम्ब। ठीक है, कूलम नाम याद रखना और इसका स्पेलिंग याद रखना, और इसका सिंबल है कैपिटल C। ठीक है, ये Q क्या है? Q है चार्ज का सिंबल। किसका सिंबल है? चार्ज का। अब देखो, छोटा सा क्विज कर लेते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। छोटा सा क्विज। क्विज क्या है? सिंबल। यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी, सिंबल, SI यूनिट, सिंबल। ये जो टेबल है ना, ये हम लोग पूरा चैप्टर में भरने वाले हैं, भरते रहेंगे हम लोग। पहली क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी? Q। Q का मतलब है, आई एम सॉरी यार, क्या लिख रहा हूं मैं अभी। पहली क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी? चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या है? Q। चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब। कूलम्ब का सिंबल क्या है? कैपिटल C। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आती जाएगी, याद रखो पूरे चैप्टर में, 1 2 3 4 5, बहुत सारी, बहुत सारी। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है भाई? क्वांटिटी का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे का। ठीक है, चार्ज हमने इतना कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में पढ़ लिया है कि अब तुम्हें कोई पूछेगा कि चार्ज क्या है। अच्छा, और एक चीज इससे एसोसिएट हो सकती है, और एक चीज हम डाल सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला, क्योंकि क्वांटिटी का फॉर्मूला होना भी जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था Q का? Q इज इक्वल टू NE। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज बेसिकली द phenomena exhibited by charged particle present on a body, which is responsible for repulsion or attraction. And when the charges flow, it is responsible for the phenomena of current electricity. What is the symbol of charge? Q. What is the SI unit of charge? Do we measure the charges, number of charges? No, we quantized the charges. So we measure the total quantity of charge. And how it is measured? It is measured in the SI unit of Coulomb. What is the symbol of Coulomb? C. What is the formula for charge? Q is equal to NE. What is N? N is a integer. What is E? E is charge on one smallest, tiniest particle ever possible. And what is that? Electron. And what is the charge on one electron? The charge on one electron is 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। इतने सवाल के जवाब अगर तुम्हें चार्ज के बारे में देना आ गया, तो बस तुम चार्ज को बहुत अच्छे से जानते हो, चार्ज तुम्हारा दोस्त है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होता है पता है? जब स्टूडेंट उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है कि सर नहीं सर, मुझे तो चार्ज कूलम से नहीं निकालना, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने हैं एक बॉडी पे, तो वही मैं उससे निकालूंगा चार्ज। भाई ऐसा नहीं हो सकता है। थिंग्स आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड देन यू इमेजिन। और जब 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी सिखाई जाती है, तो पहले चार्ज बताया जाता है, ओके दिस इज चार्ज एंड दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड दिस इज द मेथड, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द यूनिट। ठीक है, ये इसका सिंबल है, ये सब बताया जाता है। इफ यू वांट टू डायरेक्टली जंप इनटू रिसर्च डिपार्टमेंट इन 10th स्टैंडर्ड, दैट कैन नॉट हैपन। आएगा, वो भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी तो बेसिक चीजें समझ लो, नॉलेज ले लो और इंफॉर्मेशन उठाओ पहले,
ठीक है, चार्ज क्या है उसका नॉलेज तुम्हारे पास अभी पूरा है, कहां से आया, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, इसको क्यों ऐसे ही मेजर करते हैं, इसका आंसर तुम्हें अभी नहीं मिलेगा। 12th में जाओगे तो शायद तुम्हें बहुत सारे डीपर मीनिंग समझ में आए, फिर आगे जब तुम ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर्स करोगे, तो और ज्यादा तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, शायद तुम मुझे भी सिखा सकते हो फिर। लेकिन अभी हम उस टॉपिक में जाएं कि सर क्यों हम लोग चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते और चार्जेस को ये फॉर्मूला से मेजर करते हैं, ऐसा क्यों है। तो ये इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं देना पसंद करूंगा। लेट्स गो अहेड, बहुत हो गई बातें। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पढ़ा था ना तुमने, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके पास। ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें से मैंने, अगर तुम मुझे पूछो कि सर इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है, मेरे को आप बता दो, तो इंपॉर्टेंट वाली है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। और क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये फॉर्मूला और ये एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को और वो लोग ने आगे बताया, और ये बहुत अच्छा पेज है। आई होप तुम लोग नोट्स ले रहे हो, आई होप तुम लोग नोट्स ले रहे हो, बिकॉज ये मिस नहीं करना। ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो रिडंडेंट क्वेश्चंस है तुम्हारे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल के लिए ये है। हो सकता है लॉन्ग रन में तुम्हारे क्वेश्चन सही हो, बट अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन प्लीज नोट करो। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 1 मिली कूलम, सिंबल देखा उसका, स्मॉल एम कैपिटल सी, इज 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम, ये छोटे यूनिट्स हैं, कूलम के छोटे यूनिट, क्योंकि कूलम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। हमेशा कूलम जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में मेजर होता है चार्ज, तो माइक्रो या मिली कूलम में ही होता है। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम इज 10⁻⁶ कूलम। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल यहाँ पे वो लोग ने लिया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बोला है कि अगर मेरे पास 1 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे तुम्हें पता चलता है कि 1 कूलम कितनी बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, बताता हूं। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई। हमें क्या निकालना है, N, तो N इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा, राइट। तो N इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू कितना है, 1 कूलम, और E मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, -19 ऊपर चला गया, +19 हो जाएगा, और 1.6 1/1.6 हो जाएगा 0.625। मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर लिखा है, मैं इसका एक और एक स्टेप लिखता हूँ तुम्हारे लिए। 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। ये 1/1.6 कितना होगा, 0.625 इंटू 10⁻19, या फिर 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब एक कूलम में, एक कूलम चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होते पता है एक कूलम ऑफ चार्ज में, 6 to 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। 6.25 के आगे 18 जीरोस, या 625 के आगे 16 जीरोस, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज में। जस्ट इमेजिन। सो 1 कूलम चार्ज इज अ ह्यूज क्वांटिटी जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको नोट करके रखो, इसके कैलकुलेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या पका रहे हो, पता है हमको, सब पता है। इंसुलेटर क्या होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज नो फ्री चार्जेस आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स। एग्जाम्पल क्या इंसुलेटर के, रबर, ग्लास, प्लास्टिक।
वुड, पेपर, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? वैसे ये भी 12th का टॉपिक है, लेकिन हम पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर में स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर के? पहली बार सुन रहे हो शायद तुम, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, और भी है। एक्चुअली ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मतलब जो तुम्हारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलूंगा मैं उसको यार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे जैसे डायोड है, डायोड डायोड सुना है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो तुम्हारे मदरबोर्ड में और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स में यूज होते हैं, वो सारे डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, बिकॉज वहां पे इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, बहुत छोटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वो चीजें चलती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कंप्यूटर गेम्स, ये सब सेमीकंडक्टर में डिवाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हमारा बिल्कुल ये टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का, हमारा टॉपिक अब आ रहा है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर्स में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। मेटल्स एग्जांपल देखो, मेटल्स, मोल्टन सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, मतलब कोई भी मेटल कंडक्टर होगा। मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट क्या होता है? अगर तुम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करो तो वो भी कंडक्टर होगा, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के आयंस कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मतलब अगर सोडियम क्लोराइड को तुमने पानी में डाल दी तो क्या करेगा सोडियम क्लोराइड? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा पानी में। उसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं उसको। These substances are used in household wiring, in electrical appliances like fans, mixers, washing machine, सब में कंडक्टर का यूज होता है। और फिर आते हैं सबके पापा जी, सुपर कंडक्टर्स। क्या है ये सुपर कंडक्टर? These materials conduct electricity so freely that there is no obstruction to the flow of free charges. तुम बोलोगे सर ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है और ये आया कहाँ से? बताऊंगा मैं तुम्हें, सब बताऊंगा। सिर्फ ये याद रखो कि नो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, और इसमें इतने फ्री चार्जेस इतना फ्रीली मूव कर सकते हैं कि इसमें अगर एक बार इलेक्ट्रिक करंट डाल दो तो वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रहेगा अंदर। यू मस्ट बी थिंकिंग ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। और भी तुम्हें इसके बारे में जानकारी मिलेगी, गूगल कर लो चाहिए तो। बट सुपर कंडक्टर्स हम लोग थोड़ा बहुत बताया यहाँ पे, 12th में ज़्यादा, थोड़ा 12th में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना नहीं है। चलो पहला दमदार टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक मिनट यार कुछ खा लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? अगर तुम इसको डिक्शनरी में सर्च करो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मतलब होता है कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। पोटेंशियल है, लड़के में पोटेंशियल है, ये तो मार्क्स लाएगा अच्छे। सुना होगा तुमने, ये ऐसे बोलते हैं लोग पोटेंशियल, दे यूज द वर्ड पोटेंशियल फॉर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो अगर किसी भी कंडक्टर के पास हो तो उसके पास अपने आप एक सुपर पावर आ जाता है, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी आ जाती है कि वो कंडक्टर में से चार्जेस अपने आप फ्लो कर सकते हैं। अपने आप मतलब ये चार्जेस कभी अपने आप फ्लो नहीं होते। फ्लो होते अगर अपने आप तो तुम किसी भी मेटल चीज को हाथ नहीं लगा सकते। जैसे तुम्हारे आजू बाजू देखो, तुम्हारे डेस्क पे कोई मेटल की चीज दिख रही है? मेरे डेस्क पे तो काफी सारी मेटल की चीज है, चलो उसको हाथ लगाते हैं।
तो शॉक लगता है कि नहीं, देखते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ शॉक लगता है कि नहीं, शॉक क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जब ये चार्जेस फ्लो करता है ना किसी मेटल में से, तो वो उसको हाथ लगाओगे तो तुम फील कर पाओगे कि वो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तुम्हें करना है फील। फील करने का मतलब क्या है पता है, तुम्हें शॉक लग रहा है। शॉक लगा है कभी किसी को? अपनी आईज क्लोज करके इमेजिन करो, शॉक लगता है तो कैसा फील होता है। इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे हाथ में से पास होता है तो कैसा फील होता है, झटका लगता है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ एक सेकेंड के अंदर ऐसे ट्रिलियंस एंड गैजिलियंस ऑफ चार्जेस तुम्हारे हाथ के थ्रू फ्लो कर जाता है। दैट्स व्हाई यू फील दैट इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक इज जस्ट द फ्लो और पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस थ्रू योर बॉडी। बट ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहे हैं? ये तुम्हारे तुम्हारे अभी डेस्क पे जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट है उसको हाथ लगाओ, लग रहा है शॉक? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो पहला सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर? तुम्हारा आंसर क्या है, यस और नो? तुम्हारे डेस्क पे, तुम्हारे सामने, तुम्हारे अराउंड जितने भी मेटल के पार्टिकल्स है, आई एम सॉरी बॉडीज है, जितने मेटल के आर्टिकल्स हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? यस। क्यों? क्योंकि वो मेटल है, कंडक्टर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है उसमें। लेकिन तुम्हें शॉक क्यों नहीं लग रहा है फिर उसको हाथ लगाने से? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे। तो फ्लो कब करेंगे? तो यही बात है सवाल। ये चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि चार्जेस को फ्लो करवाना है। और चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फिनोमिना है जिससे हम किसी भी मेटल में चार्जेस को फ्लो करवा सकते हैं। फ्लो अगर करने लगेंगे चार्जेस तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। फैन चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। कितनी सारी चीजें इजी हो जाएगी अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो एनर्जी है। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी से हम एक फॉर्म, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में लाके हम यूज कर सकते हैं उसको। तो सबसे कोर में क्या है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो यू नीड वन थिंग, यू नीड कैपेबिलिटी फॉर चार्जेस टू फ्लो इन अ कंडक्टर। You need potential, you need electric potential. Without electric potential can charges flow? No. Without capability can charges flow? No. Without capacity can charges flow? No. So what do we need for charges to flow? Electric potential. ये सब सुनो ध्यान से, 10 बार सुनोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार सुनने में भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखो। टेक्निकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब वो लोग ने एट अ पॉइंट लिया है, तुम बोलोगे सर ये पॉइंट किधर है, मुझे दिखाओ, मुझे फिजिकली दिखाओ सर, ये अभी कैमरा चालू करके मुझे दिखाओ ये पॉइंट किधर है। ये नहीं दिखा सकता मैं, आई कैन नॉट शो यू दैट पॉइंट। दिस इज एन आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री मतलब ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ पे होता है? ये पॉइंट किसी कंडक्टर में होता है, मतलब एक कंडक्टर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। सो एक कंडक्टर के किसी पॉइंट पे, किसी पार्ट में, किसी हिस्से में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। वाओ, व्हाट अ डेफिनेशन। और अब हजारों सवाल तुम्हारे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, तो मैं उसको क्लियर करने का थोड़ा सा कष्ट करता हूं। ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी इज अ कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है, वायर है, मेटल का वायर है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, मतलब इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होना चाहिए तब जाके यहां से चार्जेस फ्लो कर पाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए या उसकी क्वांटिटी क्या है उसको समझने के लिए हमें ये डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं एक्स।
electric potential is at this point x is the amount of work done. Actually electric potential is actually the amount of work done. सही बोल रहा है, electric potential is amount of work done. Electric potential at this point is the amount of work done. Amount of work done in doing what? Question देखो relevant है. Amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to this point x. मतलब एक बहुत दूर सपोज ये बहुत दूर है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर एक पॉइंट बना लिया मैंने P. अब यहां से चार्ज को मुझे लेके आना है पॉइंट x पे. तो जितना वर्क डन मैं कर रहा हूं एक चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट में लाने के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट. तो मैंने वर्क डन किया चार्ज को इधर लेके आने के लिए. तुम बोलोगे सर चार्ज को लेने कौन से मार्केट में गए थे आप, ये ला कहां से रहे हो? मेरी बात समझो, ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन थियोरेटिकल डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है बट प्रैक्टिकल नहीं है. चार्जेस को हम कहीं से ला नहीं सकते. बट अगर हमें इस क्वांटिटी को समझना है, कौन सी क्वांटिटी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो हमें कुछ चीजें अज्यूम और इमेजिन करनी पड़ती है. डेफिनेशन बनाने के लिए भी इमेजिनेशन होना चाहिए. ठीक है, ये डेफिनेशन तुम बोलोगे सर ये तो इमेजिनरी डेफिनेशन है, तो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है. बिल्कुल लेना देना है, ये रियलिटी से डेफिनेटली रिलेटेड है, बट नॉट इन अ वे विच यू आर थिंकिंग. ठीक है, तुम इसके जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझोगे तो तब तुम्हें इसका जो अजम्पशन वाला जो डेफिनेशन का पॉइंट है उसका क्लैरिटी और उसका इंपॉर्टेंस समझ में आए. So electric potential at a point is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस p को मैं इस पॉइंट से मैं यहाँ पे x पे लेके आया, तो मैंने वो चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए कुछ वर्क डन किया. ठीक है, अब वो वर्क डन जो मैं करूंगा चार्ज पे वो स्टोर हो जाएगा चार्ज में. तो इस पॉइंट पे अब वो चार्ज आ गया है और वर्क डन भी है वो चार्ज के पास, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना मैंने वर्क डन किया है उस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए. ये उसकी एकदम एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अब ये समझो कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता जो इंफिनिटी पे है, इसको लाना नहीं पड़ता किसी वायर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर. ठीक है, बट दिस इंफॉर्मेशन दिस डेफिनेशन जिस अजम्पशन से हमने बनाई है उससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है. वो क्या है? ये फॉर्मूला. ऑल दैट वी वांटेड टू नो इज दिस फॉर्मूला. तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा? मैं इंफिनिटी से एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके तो आऊंगा इस पॉइंट के ऊपर. अब वो पॉइंट के ऊपर उस चार्ज को मैं जब रख दूंगा तो उसके पास क्या हो जाएगा पता है? कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाएगी. नाउ दैट चार्ज विल बी केपेबल टू मूव. नाउ दैट चार्ज विल बी केपेबल टू फ्लो. नाउ इट विल हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो द क्वेश्चन इज the question which you must ask is what is that potential and how we can measure that. and अभी मैंने फॉर्मूला को हाईलाइट किया है, प्लीज उसको फोकस करो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन कौन सा किया हमने? वो चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए. अपॉन क्या है? चार्ज, वो चार्ज की खुद की वैल्यू, उसका खुद का मैग्नीट्यूड. तो उसका सिंबल देखो, अभी ये पूरे फॉर्मूला का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है? V. वर्क डन का सिंबल क्या है? W. चार्ज का सिंबल क्या है? Q. ठीक है, सो अगर तुम्हें डेफिनेशन पूछते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पहले तो मीनिंग पूछते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कैपेबिलिटी. ठीक है, when a conductor has a capability to make its charge flow, then charges can flow in it, right? And what is that capability? That is the amount of work done per unit charge or amount of work done upon charge. So amount of work done upon charge will give you the capability or electric potential at a point in a conductor. ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. So V is equal to W upon Q. मैंने काफी समझाया इसके बारे में. ठीक है, बहुत सारे वेग क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं तुम्हारे, आएंगे भी, आने भी चाहिए, लेकिन
सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अभी मिलना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी आई एम गिविंग यू दिस फ्रीडम कि आप मेरे को ऐसे सवाल पूछो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, और उड़ाऊंगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा हंस लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। अरे बहुत दिमाग में सवाल आते हैं, मेरे स्टूडेंट क्या क्या मुझे पूछते पता है तुमको। वो लोग पूछते हैं सर ये चार्ज को हम लोग लेके आए हैं, तो इसको कैसे लेके आएंगे सर, इसको ऐसा डब्बे में भर के लाएंगे या इसको कैसे लाएंगे, इसको हम लोग ऐसा एनवेलप में डाल के लाएंगे या इसको छुपा के लाना पड़ेगा ना, बिकॉज पुलिस वुलिस पकड़ेगा तो चार्ज ला रहा है, अरे चार्ज लेके जा रहे हैं यार। प्लीज, इट्स फनी, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, वी कैन हैव फन, बट डोंट बी सीरियस, ओके। इसको थोड़ा सा लाइटली लो। कुछ डेफिनेशंस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब थियोरेटिकल, खास करके करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है, जब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में। बट एक ही बात बोलूंगा, हमें चार्ज को प्रैक्टिकली कहीं से नहीं लाना। ये सिर्फ एक assumption बेस्ड डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट है जिससे हम पोटेंशियल को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन पूछो, कुछ ऐसा रहेगा तो मैं तुम्हें खुद प्रॉमिस करता हूं कि अच्छे से वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो में मतलब लाइव वीडियो कॉल करके तुमको समझाऊंगा, और मैं तुमको लेके भी जाऊंगा चार्ज को लाने के लिए, 2 किलो चार्ज लेके आएंगे हम लोग। मजाक कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इसको मेजर करते हैं वोल्ट में। एंड इसको अगर मेजर वोल्ट में करते हैं तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको हम और डीपली समझ सकते हैं। देखो, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। ठीक है, W क्या है, वर्क डन, जिसको हम मेजर करते हैं जूल में। और Q क्या है, चार्ज, जिसको हम मेजर करते हैं कूलम में। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, या 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट इज नथिंग बट 1 जूल पर कूलम। इसको और एक्सप्लेन करें, 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक, नोट कर लेना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वो आर्बिट्री पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट। 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge। देखो, पूरी की पूरी डेफिनेशन मैं यूनिट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point। मतलब किसी एक आर्बिट्री पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होता है, जब हम 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये हो गई 1 वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी एक नई क्वांटिटी पढ़ी हमने, अब वापस उस पार्ट पे जाते हैं जहां पे हमने वो टेबल बनाया था। याद है, याद है, याद है, याद है, किधर गया टेबल, आ गया टेबल, मेरा टेबल आ गया रे। यस, क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक, अरे जगह भी नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है, V। SI यूनिट क्या है, वोल्ट। सिंबल ऑफ वोल्ट, सिंबल ऑफ SI यूनिट, यहाँ पे SI यूनिट, SI यूनिट वोल्ट है ना, वोल्ट का सिंबल क्या है, V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सिंबल V है और उसके SI यूनिट वोल्ट का भी सिंबल V है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q।
सेकेंड। समझा तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं? ये इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है और यूज करनी है फिर। तो पहली क्वांटिटी कौन सी थी? चार्ज। चार्ज का सिंबल क्यू, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, चार्ज के ऐसा यूनिट का सिंबल सी, चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एन ई। ई का वैल्यू क्या है? 1.6 सिक्स इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल वी, कैपिटल वी। ऐसा यूनिट वोल्ट, नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। कूलम ऑल्सो नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। वोल्ट का सिंबल कैपिटल वी, फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। कितना मजा आ रहा है ये चैप्टर करने में। मेरा फिजिक्स फेवरेट है। मैं कब से सोच रहा था फिजिक्स करूँ, फिजिक्स करूँ। तुम लोग ही मैथ्स करना है सर, मैथ्स करो, हमको तो मैथ्स ही अच्छा लगता है, हम तो मैथ्स ही करेंगे। मैं बोला यार चलो यार फिजिक्स करते हैं यार, फिजिक्स अच्छा है। नहीं सर मैथ्स ही करना है, मुझे 10 चैप्टर मैथ्स के करना है। कौन था ये यार? कौन था ये? कौन ऐसी बातें करता है? ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट जो हमने अभी लिखी थी, अभी लिखी थी हमने, फिर से देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। है कि नहीं सही? बिल्कुल सही है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही, 100 मार्क्स ले लो। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अब नई क्वांटिटी आ गई। नई क्वांटिटी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जितना ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सो पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका तुम्हारे घर पे तुम्हें देखने मिलेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? तुमने सुना होगा वोल्टेज, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ऐसा सब सुना है वर्ड। ये जो वोल्टेज वर्ड है इट इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब देखो यहां पे डेफिनेशन पढ़ के हम लोग समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहां पे 2 पॉइंट आ गए, तुम बोलोगे सर पहले 1 पॉइंट था अब 2 पॉइंट आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पॉइंट ज्यादा इजी होते हैं। जैसे कि मेरा एक वायर है, ठीक है, इस पे 2 पॉइंट है, ए और बी। वायर हो सकता है, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने 1 पॉइंट लिया था वायर पे, और 1 पॉइंट कहाँ था? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी तो किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन एक कंडक्टर पे हम 2 पॉइंट तो इमेजिन कर ही सकते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब ये 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस होना क्यों चाहिए, जरूरी क्यों है, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होना चाहिए और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका फायदा क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is the amount of work done, is the amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from one point to the other। अब कुछ मतलब की बात हो रही है यार, ये तो कोई जबरदस्त चीज बताया वो लोग ने। क्या बोला पता है? कि अगर मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे, चलो मैं चार्ज को लिखता हूं, अरे यार चलो ये चार्ज को लिखता हूं मैं क्यू, क्यू प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको मुझे मूव करके ये वायर के थ्रू लेके जाना है पॉइंट बी पे। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मुझे ये चार्ज को मूव करवाना है। ठीक है, चार्ज को मूव करवाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर इस चार्ज को मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाना है, तो जितना वर्क डन मुझे लगेगा ये चार्ज को मूव करने के लिए ए से बी तक, ठीक है, वो ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका? हमें यही तो करना होता है, हमें किसी भी कंडक्टर में चार्जेस को मूव ही तो करवाना है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर यार।
ये चैप्टर पढ़ने के पीछे आइडिया क्या है कि चार्जेस को मूव करवाना है, चार्जेस को किसी भी वायर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाना है। अगर चार्जेस मूव होने लगे एक पॉइंट से एक पॉइंट बी तक मूव होने लगे, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं मतलब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं हम। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए चार्जेस को फ्लो करवाना पड़ेगा, और चार्जेस फ्लो अपने आप नहीं होंगे, उसके लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किससे इक्वल है, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। जितना वर्क डन तुम करते हो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करने के लिए, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच में, वो दो पॉइंट्स के बीच में। तो एक बात पक्की हो गई कि भाई अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ना है तो पहले तो मुझे चार्जेस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चार्जेस ही ऐसी एक क्वांटिटी है जो फ्लो होती है। तो चार्ज ही नहीं जानता मैं, चार्ज क्या है वही नहीं जानता, तो मैं फिर क्या फ्लो करूंगा, कराऊंगा, इसको नहीं समझ सकता मैं। तो चार्ज हमने समझ लिया। और दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए to understand current electricity is the potential difference, because चार्ज तो है मेरे पास, लेकिन वो चार्ज अगर फ्लो ही नहीं कर रहे हैं, अगर चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहां से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस, वी नीड प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑलरेडी होते हैं मैटर में, लेकिन फ्री चार्जेस किस में होते हैं, कंडक्टर्स में। और कंडक्टर में क्या होता है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके ये चार्जेस को फ्लो करवा सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम चार्जेस कैसे फ्लो करवाते हो, कुछ नॉलेज है तुमको इसके बारे में, कैसे फ्लो करवाएंगे, ऐसा फूक मारेंगे क्या, फू फू फू, और चार्जेस फ्लो करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो कैसे चार्जेस फ्लो होता है, वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी है। ये वोल्टेज तुमने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, तुम्हारे घर पे रिमोट है, रिमोट टीवी का रिमोट, उस पर तुम क्या डाल के चालू करते हो उसको, बैटरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया अभी तुम्हारी लाइफ में समझने के लिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम जनरेट करते हो चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए, वो कौन देता है तुमको पता है, बैटरी। ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट, इन अ कंडक्टर, ये वर्क डन कौन करता है, ये वर्क डन करने की कैपेबिलिटी किसके पास है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कौन करता है, इतना पोटेंशियल है किसके पास, बैटरी के पास। बैटरी या सेल जो तुम्हारे रिमोट में लगते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे कार में होती है बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ये सारी बैटरीज रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, क्योंकि वो देती है हमें एबिलिटी टू डू वर्क। Batteries are responsible, pencil cells are responsible for us to uh, uh, for a conductor to generate ability to do work. When a conductor can do work with the help of battery, it can allow the charges to flow through it which are already present in the conductor. And when the charges which are already present in the conductor starts flowing, we get current electricity. अब concept clear हुआ, अब तो हो ही गया होगा यार। सिर्फ ये जो डेफिनेशंस और इसके फॉर्मूला है वो याद रख लेना। तो पहले हमने पढ़ा था ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, थोड़ा वेग डेफिनेशन था। लेकिन बाद में हमने इसका प्रैक्टिकल वर्जन पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। दोनों की जो दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब क्वांटिटी कोई अलग नहीं बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मेरे पास एक यहाँ पे
मैं बना दूं एक बैटरी और यहाँ पे लगा दूं एक बल्ब, आई एम सॉरी एक सर्किट, सर्किट में मैंने बल्ब लगा दिया और यहाँ पे मैंने डाल दी एक बैटरी या सेल, चलो 2 सेल वाली बैटरी। ये लंबी लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटी लाइन मतलब नेगेटिव। अब ये जो बैटरी है क्या करेगी पता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी या फिर प्रोवाइड करेगी। किसको? ये वायर को। ये जो रेड लाइन वाला दिख रहा है ना तुम्हें, ये वायर है। तो क्या होगा पता है, चार्जेस फ्लो होना शुरू करेंगे। ऐसा एरो दिख रहा है तुम्हें, ये चार्जेस है, ये ऐसा फ्लो करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये चार्जेस फ्लो करेंगे तो अच्छा है ना अपने लिए, बल्ब में से चार्जेस जाएंगे और बल्ब ऐसे ग्लो करेगा। देखा, पोटेंशियल एनर्जी दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस, आई एम सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया मैंने यार, आई एम सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया। किसने प्रोवाइड किया? बैटरी ने। और उसकी वजह से क्या हुआ? द चार्जेस बिगिन टू फ्लो इन द सर्किट। वर्क डन किया, किसने किया? बैटरी ने। और उसकी वजह से चार्जेस फ्लो करने लगे। और चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यू वर्क डन करना पड़ता है। ये कंटिन्यूअस वर्क डन कौन करता है? ये बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का देने वाला डिवाइस कौन सा है? विच डिवाइस गिव्स यू, ऑफर्स यू पोटेंशियल डिफरेंस और ऑफर्स अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस? अ बैटरी और अ सेल। ठीक है, कैसे काम करता है बैटरी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे यहाँ पे। बट आई थिंक ये वीडियो बहुत मस्त जा रहा है और मुझे अब इसको आगे नहीं ले जाना है। क्यों पता है? क्योंकि आगे अभी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी तुम इतना डाइजेस्ट करो, ये जो दो क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ा है, दैट इज चार्ज एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल ही बोलूंगा मैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो एक ही बात है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। ठीक है, तो चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो क्वांटिटी हमने डिटेल में पढ़ी। प्लस हमने उनके क्वांटिटी का नाम, उनका सिंबल, उनका एसआई यूनिट, उनका एसआई यूनिट का सिंबल और उनके फॉर्मूला, ये भी मैंने बताया। ये सब नोट्स कर लो। आज आज सिर्फ तुम्हें नोट लेना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और नोट्स लेनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आज। कल मैं नई क्वांटिटी, नेक्स्ट वीडियो में नई क्वांटिटी में शेयर करूंगा, दैट इज electric current, and I think that's going to be more interesting. And then slowly we will be moving towards numericals, the best part of physics, which many of you hate, I know that. Yes, 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 absolutely. So I'll see you in the next video. Till you please watch the video. और यार, आप लोग इतने लेम क्यों हो यार? आप लोग ग्रुप में कुछ कुछ कमेंट नहीं करते, मेरे वीडियोस को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कुछ बोलते नहीं हो यार। कुछ लोग तो बहुत लेम है यार। कुछ स्कूल के बच्चे जो क्लास में इतने एक्टिव होते हैं, इतनी बातें करते हैं, वो ग्रुप में कुछ बातें ही नहीं करते। अरे कुछ तो बोलो ग्रुप में यार। अरे वीडियो अच्छा लगा, मजा आया, नहीं मजा आया, घटिया वीडियो था, बोर हो गए, कुछ तो बोलो, समझ में आए यार। मेरे को कैसे समझ में आएगा? मैं इतने वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहा हूँ, मेरे को समझ में कैसे आया? प्लीज गिव योर कमेंट्स इन द ग्रुप। तो जिसका भी कमेंट आएगा मैं समझूंगा कि इसने पूरा वीडियो देखा है। जिसका कमेंट नहीं आएगा वो सो रहा है, उसने वीडियो ही नहीं देखा। तो बहुत मजा आएगा। चलो करते हैं आज, कमेंट कमेंट खेलते हैं आज। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।